आप सबके चहेते, आपके बेटे, आपके भाई जितेंद्र का आनंद भी हमारे बीच में बहुत है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the take.
समस्त ग्रामवासियों का इतना प्यार समर्थन देने पर हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाए। और युवा साथियों ने जो ये बड़ी माला के साथ अपने भाई को प्यार समर्थन दिया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, हम सारे के सारे युवा साथियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम सब इनके आभारी हैं और सभी ग्रामवासियों के हम आभारी हैं जो आपने इतना प्यार समर्थन आशीर्वाद अपने बेटे अपने भाई को दिया। आप सभी भी काबिल तारीफ, आपने जो आज ये समर्थन किया और आपने सिद्ध कर दिया कि अब की बार गनौर बदलेगा और इस गनौर के अंदर जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। अब की बार नेता नहीं, सिर्फ बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा, क्योंकि ये गनौर की जनता ने ठान लिया है, सभी ने ठान लिया कि अब की बार गनौर बदलेगा और गनौर के अंदर जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। जो आपने इतना प्यार मान सम्मान आशीर्वाद इस समाज सेवी को दिया, यही प्यार यही मान सम्मान इनको ऊर्जा देने का काम करता है, इनको शक्ति देने का काम करता है। यही प्यार इनको शक्ति देता है, आपका यही आशीर्वाद इनको ताकत देने का काम करता है। एक समाज सेवी के लिए सबसे बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ एक जनता का प्यार है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का आशीर्वाद होता है, युवा साथियों का साथ होता है। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ा दे और इनको महसूस करा दे ये सारा गांव, ये गांव की मातृ शक्ति, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये युवा साथी सब सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र कादन जी के साथ है, अपने बेटे के साथ अपने भाई के साथ है। ये उड़ा जन सैलाब सिद्ध करता है अब की बार जरूर ये गनौर बदलेगा। ये जो जातिगत भेदभाव है ये खत्म होंगे और अब की बार जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होगी। अभी जो आपने इतना प्यार मान सम्मान दिया, आप सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इधर आओ, एक बार आप निकल जाओ, साइड हो गए। पगड़ी वाले पगड़ी कौन सा आएगा? अभी हमारे बीच में कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, वो सबसे पहले उधर से पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पगड़ी का जो मान सम्मान होता है इस हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। और जिस भी गांव में जाते हैं जो पिता तुल्य बुजुर्ग पगड़ी के साथ मान सम्मान करते हैं, उससे भी ताकत मिलती है, उससे भी ऊर्जा मिलती है और एक जिम्मेदारी आती है कि अब की बार इस गनौर की तस्वीर को बदलना है, गनौर के हर गांव का विकास करना है, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। चाहे वो बात शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें या खेलों में प्रोत्साहन देने की बात करें, हर क्षेत्र में हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। ये जो बच्चे आगे खड़े, बेटा सारे बैठ जाएं, एक बार खड़े ना हो, पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं उनको दिक्कत आएगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करें, क्योंकि ये पगड़ी का मान सम्मान सबसे बड़ा मान सम्मान हमारी हरियाणा की पवित्र भूमि में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। इससे बड़ा मान सम्मान कोई भी मान सम्मान नहीं होता। और बड़ी माला के साथ, इतनी फूल मालाओं के साथ और कंधों में बिठा के अपने भाई को जो युवा साथी लेके आए, इन्होंने एक नया जोश ताकत देने का काम किया इस समाज सेवी को, और ये इस ताकत और इस ऊर्जा को आपकी सेवा में लगाएंगे, इस गनौर के विकास में लगाएंगे। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। आपकी तालियों की गूंज, आपका प्यार आशीर्वाद ही इनको ताकत देता है, इनको ऊर्जा देने का काम करता है। सभी मंच पर बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों का सभी का हम फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो इतना प्यार मान सम्मान आपने अपने भाई बेटे को दिया, सभी सबके हम आभारी हैं। अभी सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले समय सीमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आगे के भी प्रोग्राम है, सबसे पहले आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर एक बार नारे लगाएंगे और ये नारों की गूंज गनौर के कोने कोने में जानी चाहिए। सबको पता लग जाना चाहिए कि इस गनौर की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार गनौर को बदलना है, अब की बार इस गनौर की तस्वीर को बदलना है। सभी
दोनों हाथ उठाकर एक बार नारे लगाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है, पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की। थोड़ी सी कसर रह गई भाई, गनौर के कोने कोने तक जानी थी आवाज, और जोश लगा दो थोड़ा सा, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार और जोश के साथ आपको नारे लगाने हैं और अपने इस बेटे भाई को महसूस करा दो। ये पूरा गांव, ये गांव की 36 बिरादरी, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये माता शक्ति, ये युवा साथी, सब इस समाज सेवी के साथ, अपने बेटे अपने भाई के साथ हैं। मैं आपको कहूंगा देवेंद्र कात्यान, आप आगे बढ़ो। आपको दोनों हाथ उठाकर बोलना है, दिल से आवाज निकलनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। आपको बोलना है हम आपके साथ, और महसूस करा दो इनके रोम रोम का कि अब की बार गनौर को बदलने में, इस लड़ाई में सारी जनता, ये 36 बिरादरी इस बेटे के साथ है। और अब की बार गनौर में सिर्फ और सिर्फ एक बेटा चुना जाएगा, नेता नहीं चुना जाएगा। जोश के साथ आपको ये नारे लगाने हैं। देवेंद्र कात्यान, आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा महसूस करा दीजिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, पूरे जोश के साथ बोलना है। देवेंद्र कात्यान, आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, जो आपने इतना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद अपने बेटे अपने भाई को दिया, एक नई ऊर्जा, एक ताकत देने का काम किया। अभी मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए देवेंद्र कात्यान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखे। जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करें। अभी 2 जयकारे लगाने हैं सबने, मुट्ठी को ऐसे बंद करना है और जोर से जयकारे लगाने हैं। बाबा समस्या की आपने बोलनी है, जय जय बाबा समस्या की। कसर रहेगी भाई, जय बाबा समस्या की, जय बाबा खेड़े की, जय बाबा खेड़े की। ये बात सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति यहां से शुरू होके और वहां जहां तक लास्ट में वो बहनें खड़ी है, हमारी माताएं खड़ी हैं, इतनी सारी संख्या में मैं समझता हूं जो हमारा गांव है नयाबास, शायद ऐसा लगता है हर घर से हमारी माता बहन यहां पर पहुंची है। सबसे पहले मैं इनको सर झुका के नमन करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं। साथ में मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। इतनी ताकत दी, इतना आशीर्वाद दिया, वहां से इन नौजवानों ने कंधों पे बिठाकर, और मैं समझता हूं इतने मेरे सिर पे हाथ आशीर्वाद के लिए आए। मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अपने गांव बजारा कला में, जहां मैं अपनी भूमि, जन्मभूमि है, ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने घर में हूं। और नयाबास जो गांव है, ये मेरा ग्वांड है, मेरा गांव है। आपने जो आज प्यार सत्कार दिया, उससे मेरे रोम रोम खड़े कर दिया। मेरे हाथ में एक कागज है जिसपे कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम है। इस कागज पर तो शायद 15-20 लोगों के नाम है, लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, नौजवान साथी हैं, जिनको केवल आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, जिनके चेहरे से, जिनके नाम से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूं। सभी मेरे सम्मानित भाई हैं। इस पे हमारा नौजवान साथी, आपका लाडला सरपंच प्रदीप भाई, हमारे पूर्व में सरपंच इंदर सिंह जी, पूर्व में सरपंच धर्मपाल जी, महावीर जी, मुंशी जी, रमेश पुत्र शेर सिंह, राजेंद्र नंबरदार जी, बलवान फोरमैन जी, सुभाष डॉक्टर जी, लक्ष्मण प्रजापति जी,
रतन जी, नरेंद्र भाई, ईश्वर वाल्मीकि जी, रमेश केशव, रमेश ठाकुर जी, सतबीर पुत्र हवा सिंह, अग्रेज पुत्र पृथ्वी, रणधीर पुत्र सूरत, रणधीर प्रजापति जी, डॉक्टर अनिल पंडित जी, रामदिया जी, ईश्वर सेक्रेटरी जी, रणधीर सनोप, राम स्वरूप, नरेश हरे सिंह, पंडित महेंद्र जी, महावीर बैरागी जी, पंडित जग्गू जी, रमेश रविदास समाज से पंडित रमेश जी, रणबीर सनोप गुलजारी, पूरे 7 चढ़ा दिए, घड़े लिख रखे थे। इस ताचा पे सारा के लिख देते। मेरे लिए सब सम्मानीय हैं। हो सकता है बहुत ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका इस पे नाम ना हो, तो इसलिए इस कागज पे नहीं, मेरे दिल पे सबके नाम है, सबका सम्मान है। जो सम्मान आपने मुझे आज गांव में उस मौके पे दिया है जब मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, जब मुझे आपकी ताकत की जरूरत है, इसलिए कागज पे नहीं, ये सम्मान मेरे को हमेशा मेरे दिल के अंदर रहेगा जब आपने इस मौके पे मेरा साथ दिया है। देखिए, अब यहां से पहले आपके ही दूसरे गांव में समस्तपुर में गामड़ा में प्रोग्राम था, वहां से सीधा चलकर 4-5 जगह चाय थी, सीधा आपके बीच में आए हैं। मैं समझता हूं ये अपने 3 गांव, गामड़ा, खुबड़ू और नयाबास, खुबड़ू का प्रोग्राम अभी 2-3 दिन बाद है, लेकिन हमारा जो समस्तपुर गांव छोटा सा गांव है, वहां की भी जो संख्या हमारी माता बहनों की थी, इन बुजुर्गों की थी, नौजवान साथियों की थी, और जब यहां आकर इन दोनों को यदि जोड़ दूं तो समझ लो कि आपके भाई ने, आपके बेटे ने जो बेड़ा उठाया था आज से 8.5 साल पहले, नेता नहीं बेटा, मैंने कहा नेताओं को छोड़ दो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। आप आज वो जो आशीर्वाद मिला है, मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि मैं एक छोटे गरीब किसान का बेटा हूं। मैंने कहा नेता नहीं बेटा, और यहां पर बैठी हर मातृशक्ति, हो सकता है इस नारे के बारे में उसको कुछ समझ नहीं आया हो, एक बार थोड़ा खोल के बता देता हूं। मैंने अपने आप को बेटा इसलिए कहा क्योंकि मैं जो इस मंच तक पहुंचा हूं वो आप जैसे परिवार से निकल के, उस भीड़ में से निकल के यहां मंच तक आया हूं। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, एक छोटे किसान परिवार से, आपके गुआंढ से आता हूं, जिसने हर किसान का, हर गरीब आदमी का, जिसने सारा का सारा जो दर्द है, एक किसान की पीड़ा क्या होती है, एक नौजवान की पीड़ा क्या होती है जब वो बेरोजगार हाथ में कागज लेके नेताओं के जब चक्कर काटता है कि भाई मुझे नौकरी लगा दो, और नेता उसको 2 साल 3 साल अपने पीछे पीछे घुमा के बेवकूफ बनाते हैं। फिर जब नौजवान शहर में जाके छोटे छोटे काम, कभी सब्जी बेचना, कभी जूस, कभी दूसरी दुकान, इसलिए मैंने अपने आप को बेटा कहा जिसने हर रास्ता खुद से तय किया हो, हर पीड़ा को खुद में महसूस किया हो, गरीब किसान का बेटा जिसने किसानी का दर्द समझा हो, मजदूरी का दर्द समझा हो, इसलिए मैंने अपने आप को बेटा कहा। और नेता मैंने उसको कहा जिसने नेता के घर में जन्म लिया हो, जिसके पिताजी बड़े बड़े पदों पर 4-4, 5-5 बार चुनाव लड़ा हो, वो स्वयं भी बड़े बड़े पद पर मुख्यमंत्री के लेवल जैसी कुर्सी पे रहा हो। पहले पिताजी, फिर स्वयं, और आगे जो सपना लेके घूम रहे हैं कि भी मेरे बेटे को भी
आगे राजनीति में लेके आओ। पिछले दिनों एमपी का इलेक्शन था, बेटे का हाथ पकड़ के करनाल में घूम रहा था, भाई इसका भी जुगाड़ बिठाओ। इसलिए मैंने नेता कहा, परिवारवाद की राजनीति जिन नेताओं को लगता है कि एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नेता के घर की कोख चाहिए, नेता के घर में ही जन्म लेगा तो एमएलए बनेगा, गरीब किसान का बेटा एमएलए नहीं बन सकता, जिन नेताओं की मानसिकता यह है, मैंने उनको नेता कहा और आपके बेटे को बेटा कहा। क्योंकि इन सब राजनीतिक घरानों को लगता है कि कल को मेरे बाद मेरी कुर्सी पे मेरा बेटा ही आए। क्यों एक गरीब परिवार का बेटा, किसान का बेटा इस कुर्सी पे आए, इस बात की उनको तकलीफ है। और इस टीवी के माध्यम से, और मैं समझता हूं टीवी की भी जरूरत नहीं है, पिछले 8.5 साल आपने अपने बेटे के कार्य देखे हैं, उसकी सोच देखी है, उसके विचार देखे हैं। यहां पर बहुत सारी हमारी माता बहनें गरीब वर्ग से आती हैं, दलित वर्ग से हमारे कई नौजवान साथी खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बेटे ने बिना कोई चुनाव लड़े, ना कोई सरपंच, ना एमएलए, ना कोई मंत्री, बिना कोई चुनाव लड़े आपकी सेवा करने का काम किया है। लोग तो बड़े बड़े पद पे रह के, सीएम की बराबर की कुर्सी पर बैठ के गरीब लोगों के बीच में जाते हैं चुनाव के समय, और केवल उनको ठग के उनकी वोट ले जाने का काम करते हैं। गरीब आदमी के घर का पानी भी नहीं पीते। इतने हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति बैठी है, आप मुझे हाथ उठा के बता दो, जिस नेता का मैं कांग्रेस पार्टी के नेता का जिक्र कर रहा हूं, किसी दलित घर में यदि आज तक पानी की घूंट भी पी हो तो मुझे हाथ उठा के बता दो। किसी के घर में नहीं पिया। इसलिए नेता और बेटा का फर्क समझना है। उस नेता ने हर गांव में सिर्फ 1 या 2 अपने अड्डे बना रखे हैं, 1 या 2 ठिकाने बनाए हैं, उसके अलावा उसने इस गांव में कुछ नहीं किया। उस गांव के बारे में छोटा सा भी कोई काम होता है, अपने अड्डों पे फोन करता है, फोन मिलाता, भाई जो फलाना आदमी है, क्या गांव था इसका, अपने जहां उसने ठिकाने बनाए हैं, जहां पर अड्डे बनाए हैं, उन्हीं से वास्ता रखता है। उन्हीं के घर गाड़ी के ब्रेक, उन्हीं के घर में खाना, उन्हीं के घर में नौकरी, और उन्हीं के घर में सलाह मशवरा। सारे गांव की जानकारी मात्र 1, 2 या 3 परिवारों से लेता है। उसको गरीब आदमी से, इन किसानों से, बुजुर्गों से, इन नौजवानों से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ इस पूरे गांव की चाबी समझता है, ये 2-3 लोग परिवार चला लेंगे। ये कहानी चुनावी नहीं है। कभी आप सोचो भाई छोरा आया था चुनाव की वजह से ये बात बोल के चला गया, ये हर गांव की कहानी है। आप खुबड़ू चले जाओ, आप गामड़ा चले जाओ, आगे अटाल होलाना, जहां मर्जी जाओ, हर गांव में उस नेता ने केवल 1 परिवार पकड़ा या 2 परिवार पकड़े। वो परिवार भी जो खुद में सक्षम है, परमात्मा ने जिनको मौत दे रखी है, गरीब आदमी को तो केवल वोट लेने का काम किया, उनका पानी भी नहीं पिया। पानी पिया हो तो बता दो। इसलिए उसको आपने 10 साल मौका दिया, 10 साल वो कुर्सी पे रहा, और ये 5 साल मिला के वो 15 साल आपके बीच में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई हमारा नौजवान साथी, आम परिवार का, गरीब परिवार का, एससी समुदाय का, बैकवर्ड समुदाय का, मुझे हाथ उठा के बता दो, या किसी का भला किया हो, किसी का भला किया हो तो हाथ उठा के बता दो। इसलिए अब जो ये समय है वो आपको चुनना है कि बेटे को बनाओगे या उसी नेता को बनाओगे जिसने भेदभाव की राजनीति करी है, जिसने केवल दुबात किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है।
आजकल आपके बीच में चेहरा बदल के आ रहा है। अब की बार इन बुजुर्गों को बोलता है, ताऊ मैंने पैर दबाने बंद कर दिए हैं। पहले मैं बीएसटी में इन बुजुर्गों से पैर दबवाता था, अब मैंने पैर दबवाने बंद कर दिए। इन बुजुर्गों को बोलता है। हमारे गरीब भाइयों में, दलित भाइयों में, इन माता बहनों में, इनके घर में जाता है, इनका प्रोग्राम करके बोलता है कि सबको 100-100 गज के प्लाट बांटूंगा। झूठे वादे करके जा रहा है। बोलता है सबको 100-100 गज के प्लाट बांटूंगा। जिस गांव में जमीन भी नहीं है उसको भी बोलता है सबको प्लाट दूंगा। जहां पर पंचायती जमीन नहीं है वहां पर भी बोलता है सारे गरीबों में प्लाट बांटूंगा। कोई प्लाट बांटने वाला नहीं है। माता बहनों, वो केवल उसका सीजन चल रहा है, 1 महीने का सीजन है। आपको बेवकूफ बनाएगा, आपकी वोट लेके जाएगा और उसके बाद कहीं नजर नहीं आएगा। पहले आपने आजमाया उसको, उससे पूछो, जब पहले 10 साल मौका दिया, 2 बार मौका दिया, सरकार में था, पहले क्यों गरीब याद नहीं आए? पहले दलित परिवार क्यों नहीं याद आए? हमारे बच्चों को क्यों रोजगार नहीं दिया? ये सारे सवाल उससे करने हैं। और आजकल एक नई चीज लेके आया, इन बुजुर्गों को कोने में लेके जाता है और कान में खुशर खुशर करा है और नु कहता हूं तेरे छोरे की नौकरी अब की बार पक्की। कौन से नौजवान ने पकड़ा है और किसी ने कान में कह दे है, भाई तू मेरा छोटा भाई, तेरी नौकरी पक्की। आप सबको बेवकूफ बनाता है। किसी की नौकरी पक्की नहीं है। आजकल नौकरी मिलती है जिसके अंदर काबिलियत है, जो पढ़ाई में अव्वल है, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आखिरी लाइन में बैठे हुए उस गरीब परिवार में नौकरी मिलती है जिसके घर में ना पैसे हैं, ना नेता की सिफारिश है। लास्ट में आदमी को भी नौकरी मिलती है। पहले नौकरी मिलती थी। पहले तो गांव वाले चौधरी को उठाओ, अपने गांव में जाओ, पहले तो उस चौधरी को बनाओ भाई जो उसने अड्डा बना रखा, उसको लेके जाओ करनाल, चंडीगढ़, या तो पैसों की गठड़ी या उसके पैर दबाओ नेताजी के, तब नौकरी मिलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब परिवार के घर की घंटी भी अपने आप बजती है यदि उसके बेटे में, उसकी बेटी में काबिलियत है। नौकरी के चक्कर में मत आना, कोई नौकरी नहीं देने वाला। केवल 1 महीना उसका ये सीजन है। वो बड़े बड़े भाषण देके आपको बेवकूफ बना के आपकी वोट लेके जाएगा, उसके बाद नजर भी नहीं आएगा नजर। और यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। एक बात आपको खुले मन से और खुले मन से बोल के जा रहा हूं, वो 3 तरीके के भाषण लेके आया है। गन्नौर हलके को 3 भागों में बांट दिया है। लाइन से इस तरफ का गन्नौर, उसका भाषण अलग देता है। शहर में अलग भाषण, खतरे में अलग भाषण। लाइन से इस तरफ बोलता है कि चौधरियों अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपनी चौधर लेके आओ, अपनी सरकार बनाओ। वो बेवकूफ बनाता है चौधर के नाम पे। जिस आदमी के, जिस नेता के नाम पे वोट मांग रहा है, वो जो नेता जब सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ रहा था, ये वही व्यक्ति है जिसने उसकी गोभी खोदी थी, जिसको हरवाने का काम किया था। उसी नेता के नाम पे वोट मांग रहा है कि मेरा नेता वो है। भाई चौधरी अपना सीएम बना लो, अपनी चौधर ले आओ। उसको कोई चौधर से मतलब नहीं है। वो उस बात के पीछे कहना चाहता है कि एक बार मेरी दुकान दोबारा जमा दो। वो कहना चाहता है कि भाई एक बार एक मौका और दे दो, मेरे को एमएलए बना दो।
ये गौर करने की बात है। वो बेवकूफ बना रहा है। यहां पर आपके बीच में आएगा, उस नेता का नाम बार बार लेगा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा हाँ भाई बात ठीक कर रहा है, लेकिन उस बात के पीछे उससे जवाब मांग लेना। चल भाई तेरी बात ठीक है चौधरी, एवं न्यू और बता दे, जब जो नेता चुनाव लड़ रहा था तो तेरी कौन सी भूमिका थी, तू किस जा रहा था उस टाइम? तेरे को तो अपना भाईचारा याद आया? उससे पूछना है किस नेता का बेवकूफ बनाते हो, कौन सी चौधरी की बात करते हो? उसी नेता का आपने नुकसान किया जिस नेता का बार बार जिक्र कर रहे हो। शहर में जाएगा, शहर में जाके भाषण चेंज हो जाएगा, बदल देता भाषण को। वहां जाके बोलता है लाला जी देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए। शहर में जाके किसान के बेटे को गुंडा बताता है। शहर में जाके बाजार में मंडी में जाके बोलता है लाला जी देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए। क्या किसान का बेटा गुंडा हो सकता है? क्या एक व्यापार करने वाला जिसने नीचे फुटपाथ पे लेके हर दुकानदारी को खुद चला के व्यापार को आगे बढ़ाया हो, गुंडा हो सकता है? एक गरीब का बेटा गुंडा हो सकता है? आप जाके तसल्ली कर लो, जहां भी बोलता है यही भाषण बोलता है, शहर में जाके अगर गुंडा का राज आ जाए। उससे जवाब लेना है। अरे भाई नेताजी तो नहीं, हमारा छोरा गुंडा क्या में लग गया? 8.5 साल हो गए, इसने बिना कोई चुनाव लड़े हल्के की सेवा करी, अच्छी सोच के तहत आया, हमेशा गरीब आदमियों की मदद करी। एक बार बताइए कौन सी गुंडागर्दी करी? तुम्हारा बेको बना हड़ा के चौधरी के नाम पे, और शहर में जाके बताओ तू गुंडा। इसलिए अपने का और पराये का फर्क समझना है, भावनाओं में बहना नहीं है। वो केवल अपना रूप बदल के आया है, अंदर से वही है। उसने इस हल्के में जो जो ठिकाने बना रखे हैं उन ठिकानों से मतलब है, और किसी गरीब आदमी से कोई सरोकार नहीं। कदे आवे और उसकी बकाई में वो कान में खुसर खुसर करे है। इन गरीब आदमियों प्लॉट बटन की बात करे है, नौजवान नौकरी की बात करे है, और वह थारे में चौधरी की बात करे, थारी चौधरी लाऊंगा। उसको बता देना भाई चौधरी जिसके बाद में आ जाएगी, पर तेरा इलाज करेंगे, तने तेरा काम हमने देख रहा है, तेरा इलाज दूसरी बार फिर करेंगे। उसका बता दी नवदेश यो हिसाब करवा दूंगा तारेगा चौधरी वाला, पर तू आ जाएगा पहला, उसे पूछ ले। इसलिए इन सारी चीजों का गौर से समझना है। वो जगह जगह जाकर बेवकूफ बनाता है। कहीं पर मेरे को कहता है कि सारे इसके होटल 2 नंबर में चले। अरे भाई एक महीने में मैं गुंडा भी बन गया, मेरे होटल भी 2 नंबर के चल गए। तुम सारे उड़ा जी रोड पे रोटी खाने जाओ, तुमने कौन सा 2 नंबर का काम दिखा भाई उड़ा? इसलिए आपने अपने बेटे को, अपने भाई को ताकत देनी है, और इन बातों का उसके मुंह पे जवाब देना है। उसको रिकॉर्डिंग दिखा दियो। और भाई नए बास में आ गए तेरा भाषण यो, और तू मंडी में कह रहा था क्या मैं गुंडा लगे भाई? क्या किसान के घर में जन्म लेने का मतलब है गुंडा होता है? उसे इस बात का जवाब लेना है, पूछना है उससे। इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंतिम में एक बात, एक निवेदन और करके जा रहा हूं। कई बार हमारे देहात में, गांव में बहुत सारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित चाचा ताऊ, सबको ऐसा लगता है भाई छोरा तो बढ़िया है, बजनिया विचार भी बढ़िया है, जाके इसकी गेल जुड़ जावे तो ये हमारे गांव का यार फलाने का छोरा फलाना फलाना, ये 5-4 घने उसकी गेला अंडा है, कहते कि तुम्हारी बूझ ना हो। हमारे यहां पर हर गांव में एक ये परेशानी है। उनको लगता है कदे छोरे का मदद भी करें और कि तो गिनती ना हुए, ये कई इसकी गेला अंडे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नए बास गांव में सैकड़ों ऐसे युवा साथी, सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बेटे को कई बार व्रत के देख रखा है। मेरी किताब में ना मेरी डायरी में कोई ऐसा पन्ना है किसी के साथ भेदभाव करो
आगे भाई गांव में तसल्ली करूं, भाई आदमी काम आ रहा है के ब्यों से करूं कि ना करूं, या पढ़ाई में नहीं पढ़ के आया। एक आदमी, एक हमारा किसान, हमारा चाचा ताऊ ऐसा बैठा है गांव में, 1 साल बाद मिलता हूं, मेरे को बोलता भाई देख छोरे, मारे बस की रोज रोज की हाजिरी सैनी, हम तेरी वोट करेंगे 10 आदमी हम तेरा जिक्र करें, लेकिन यार राम राम रोज करने आ जाएगा भाई। वो उसका अपना तासर है, उसके काम का हिसाब किताब अलग है। एक हो भाई जिसका काम गन्नौर हो, वो दुकानदारी में हो, कोई नौकरी वाला हो सका वो साल में राम राम कहीं करता हो। अब किसी साथी का सुबह हो भाई उसके पास टाइम हो, इसलिए इस बात को आधार नहीं बनाना है भाई फलाना छोरा घड़ा दिखा है, एक बार बरत के देखो छोरे जब बेरा लगेगा, बिना बरते नहीं बेरा लगेगा। या फिर गांव में एक आदमी मिनटों में देख लो, अकबर मैं गया था मेरे गेल तो बात कर दिया, ऐसा लगा दो मेरी आत्मा में 36 बिरादरी और सब समान है, जो साल में एक बार आवे वो भी उतना सम्मानीय है, और बस जो भाई जिसके पास टाइम है वो भी सम्मानीय है, उसके लिए भी सम्मान है। लेकिन कोई नु को ना पुराने नेता हुई तरिया काम भी बांटने हो, गरीब आदमियों में पर्ची भी पूछ पूछ के बांटा, बोला किसके देनी पर्ची है, हमारा हिसाब को नहीं हो। इसलिए बिल्कुल अपने बेटे का साथ दो। और एक चीज और कह के जा रहा हूं, खड़े हो लियो, ये सारे नुंगले नए पुराने सारे गुंडे इकट्ठे होंगे, इन्होंने मेरा भाई काम कड़ी आदमी है, अच्छी सोच है, एक बार जब बन गया फिर थारे भर का ही दुकान बंद करेगा। इन्होंने मेरा है, गरीब आदमी का हितैषी है, काम करने की भूख है, जुनून है, यदि एक बार बन गया फिर सोच लो थारी दुकान पक्का बंद है, काम इतने करेगा फिर ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सारे हाथा मात कर लेंगे नए पुराने। पहले करने करके बताओ, और भाई जुड़ से चाचा तो हमारे ना हो उन तो बता दियो, नो कहते भाई अपना छोरा है कदे गर्भ में मार दो, एक बार तो उसका अधिकार है पैदा होने दो ना, बता दियो। जुड़ से जिनका थोड़ी बात दूसरी कैसे चल रही है ना ले वाली, उन तो बता दियो रहा अपना छोरा है मारोगे के, अपना गुआंढ गाओ के कित की बीमारी हला के गड़की बता भाई। थारा छोरा जिसने हर तजुर्बे का बेरा हो, उससे पूछ के देखिए, कोशिश झोटी खोल के बताइए के डोका मैं बता दूंगा, खेत में ले जाकर पूछ के देखे, जब ट्रैक्टर घेर भी लाना आ जाते अरे छोरे ने दिखाओ। इसलिए जिस आदमी ने दर्द देखा हो, जिन्हें किसानी देखी हो, जिसने तकलीफ देखी हो, जिन्हें बेरोजगारी देखी हो, उस नौजवान को मौका दो जिसने काम करके देखा। ये सारी बात है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और भाई वो चश्मे वाला बाबा होगा, उसका चाय पानी पिलाइयो, मान सम्मान करियो, और सारी बात सुन के 2-4 बातों का इनका हिसाब ले लियो। तो भाई चौधरी की बातें सुन ली, ए भाई इलेक्शन में तू की जा रहा, बात जरूर पूछियो, उस पर हिसाब लिए ना भाई, यू चक्कर समझ में नहीं आया तेरा, तेने चौधरी भी दिखा है, तेने उसकी गोभी खो दी, उसकी की जा रहा था, तुझे यह बात पूछ ली, सारे सवाल का जवाब ले गए, फिर बता दिया ना तो मैं खूब जाना नून लिकट जा, और आगे प्रेम जाना तो टाल नून लिकट जा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।